This is All India Radio. Welcome to the business news program Money Matters. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम शेयर बाजार, कारोबार और अर्थ जगत की ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए शुरू करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से। Benchmark domestic indices logged marginal losses in the business week ended yesterday amid profit booking in the equity markets worldwide. Sensex closes below 49,000 after hitting an intraday record high of 50,000 mark. Nifty settles below 14,400 level and rupee witnesses modest weekly gains against the US dollar. दुनिया के शेयर बाजारों में मुनाफा वसूली के बीच घरेलू सूचकांक में कल समाप्त हुए सप्ताह में मामूली गिरावट दर्ज की गई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 49,000 के स्तर के नीचे आकर बंद हुआ। हालांकि सप्ताह के अंतिम दिन कारोबार के दौरान सेंसेक्स 50,000 के स्तर पर पहुंच गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी ने भी सप्ताह के दौरान तेज उछाल दिखाई दिया, लेकिन अंत में यह सूचकांक गिरावट के साथ 14,400 अंकों के नीचे बंद हुआ। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद उम्मीदों के बीच बाजारों में तेजी आई थी, जिसके बाद निवेशक मुनाफा वसूली में लग गए। लेकिन अमेरिका, यूरोप और चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से उपजी चिंता निवेशकों की उम्मीद पर भारी पड़ी। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 746 अंक यानी 1.5% की गिरावट के साथ 48,879 और निफ्टी 2,018 अंक यानी 1.5% की गिरावट के साथ 14,372 अंकों पर बंद हुआ। सप्ताह के दौरान बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी गिरावट देखी गई, लेकिन उसने सेंसेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप सूचकांक में 1.19% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.04% की गिरावट दर्ज की गई। Harveer Singh, editor, Rural Voice, is with us. Harveer, it seems as though the 50,000 mark is not palatable for the Sensex. We are unable to touch the figure of 50,000 mark. What could be the reasons behind it? I know, actually, Rajesh, it was a very important thing that in intraday market touched 50,000 mark. Yes. But at the same time, there is a cautious approach also from experts and even in global markets, if you see there was some profit booking and any expert they are advising to particularly small investors, they have to look where they entered into the market, and there was a profit booking in the market. And if you see after Joe Biden being president of US, so the new package, $1 trillion package is there, liquidity is in ample there. But at the same time, we have to see that commodities also started looking upward. It means that some investment is going from liquidity to commodities now. So in coming days, I think commodities will balance the stock market. Okay, the FII buying has been the mainstay in the current rally, pushing it to record highs. And better than expected Q3 numbers so far has helped the sentiments quite a bit. Do you believe the market is likely to consolidate now? I think market will consolidate. As you said, the numbers are coming good in some sectors. Companies are booking good profits. They are coming with better numbers. But at the same time, we have to see because this market cap has reached almost at the GDP level, and usually experts think that it must be around the 70% of the GDP. But globally, there is really since last few months in the market, and you see when after coronavirus outbreak, market touched low everywhere. Now it has gained almost double. But now there are some positives are also coming because vaccination is happening in a big way globally, and I think economies are still started looking upward. So all these factors will decide when the market will get settled or which direction it will be. और हरवीर जी, अगर हम देखें जिस तरह का बाजार जो सूचकांक हैं इस सप्ताह में हमें दिखाई दिए, जैसे कि सेंसेक्स जो था वो 746 अंक की गिरावट के साथ 48,889,
879 पर आ गया और निफ्टी 218 अंक यानी 1.5% की गिरावट के साथ 14,372 अंकों पर आ गया। तो अब आपको क्या लगता है कि सोमवार को इस स्तर से कहां तक पहुंचेगा हमारा दोनों सूचकांक? एक्चुअली देखिए, एक तो मार्केट जो है वो ग्लोबल जो मार्केट है वहां से क्लू ले रहा है, क्योंकि मार्केट जहां तक पहुंचा है उसका सबसे बड़ा फैक्टर लिक्विडिटी है। जो तमाम सारे जो दुनिया के बड़े देश हैं उन्होंने जो कोविड के पैकेज में जो इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए बड़े बड़े पैकेज अनाउंस किए, उसका लिक्विडिटी प्लस मार्केट में कंटिन्यूअसली गेन हो रहा है। बाकी सेक्टर्स के जो है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, उनके मुकाबले मार्केट है परफॉर्म्ड इन अ वेरी बिग वे। सो एक लोगों का ये भी धारणा रही है, इसलिए एफआईज के अलावा डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी ज्यादा है, रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट भी है। बट नाउ एक तो लोगों को निगाह रहेगी, बजट इज वेरी क्लोज, उसको लोग देखेंगे, और बाकी जो ग्लोबल मूवमेंट जो मार्केट्स का है वो इसको काफी हद तक तय करेगा कि मार्केट कंसोलिडेट होगा फर्दर या किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन आरवीर जी, ये अगला आने वाला सप्ताह जो है वो आखिरी सप्ताह है बजट के आने से पहले, तो आपको लगता है कि क्या इसमें जो उतार चढ़ाव है वो जारी रहेगा, और या आपको लगता है कि बाजार स्टेबल होगा और फिर से एक बार 50,000 के क्रॉस जाने की कोशिश करेगा? देखिए, मुझे लगता है कि शायद बाजार जो है वो एक कोशिश अप्रोच में जाएगा, बिकॉज बजट इज वेरी क्लोज। बजट में किस तरीके के प्रपोजल्स आएंगे, क्या गवर्नमेंट के स्टेप्स होंगे, कौन सा सेक्टर ज्यादा बूस्ट होगा, किस पे असर आ सकता है, किस तरह इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के स्टेप्स होंगे, ये सारा अब क्योंकि मार्केट को डायरेक्ट रिलेट करता है तो इसको लेकर के कोशिश अप्रोच रहेगा। हो सकता है कि कुछ वजह से वॉलेटिलिटी भी रह सकती है, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा, उसका मुझे संभावना अभी इस स्टेज पे नहीं लगती कि रिकॉर्ड्स की तरफ बनाते जाए हम आगे, बिकॉज बहुत लंबा मार्केट ने अपवर्ड मूवमेंट देखा है। Moving on, the rupee in the business week ended yesterday appreciated 9 paise to settle at 72 rupees and 98 paise against the US dollar. The domestic unit strengthened during the week mainly due to rise in the domestic equity markets. Yesterday, the dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, rose 0.9% to 90.21. और चलते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के निर्माण के लिए 1,64,00,000 रुपए की सब्सिडी राशि का वितरण किया। यह धनराशि प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना के अंतर्गत आज तमिलनाडु में रामनाथपुरम में दी गई। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में मत्स्य विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। The Dow and S&P 500 witnessed modest losses yesterday amid losses in leading blue-chip technology companies like Intel and IBM. Losses in the tech sector were offset by gains from Microsoft Corp, Apple Inc., keeping the declines in the main U.S. stock indices in check and lifting the Nasdaq marginally. Energy and financials were the worst performers among the 11 S&P sectors yesterday. The Dow Jones Industrial Average declined 0.6% and the S&P 500 slipped 0.3%, while the Nasdaq Composite Index added 0.1%. Harveer, we would like to thank you for being with us, and before we close, a reminder of the headline. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया के शेयर बाजारों में मुनाफा वसूली के बीच घरेलू सूचकांक में कल समाप्त हुए सप्ताह में मामूली गिरावट दर्ज की गई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 49,000 के स्तर के नीचे आकर बंद हुआ। हालांकि सप्ताह के अंतिम दिन कारोबार के दौरान सेंसेक्स 50,000 के स्तर पर पहुंच गया था। निफ्टी 14,400 अंकों के नीचे आकर बंद हुआ और रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मामूली साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई। And that's all we have in this edition of Money Matters. Till tomorrow, goodbye.